Good morning, students. We are going to discuss the different activities given by CBSE for the subject Applied Mathematics. In Applied Mathematics, we are having various activities, and out of these activities, we have to do only 5 activities. So, starting with the very first activities, and that activity is to apply different operations on matrices using a spreadsheet. अब जो spreadsheet होती है, that is Excel sheet in the computer. अब स्प्रेडशीट के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं एंड वी नो दैट इन मैट्रिसेस वी आर हैविंग डिफरेंट ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, and after that last operation is inverse of matrix. So firstly we are going to discuss here that we have to find out the addition of two matrices. अब addition of two matrices में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स हम लोग ये कंसिडर करते हैं, कैपिटल ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं. सो लेट अस सपोज हमारे पास ये 3 by 3 एक मैट्रिक्स हो जाती है जिसके एलिमेंट्स 1 2 4 4 2 3 10 22 एंड 17 है. सिमिलरली हम लोग एक सेकंड बी मैट्रिक्स लिखते हैं और यहाँ पर भी इसको भी 3 by 3 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, बिकॉज अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हमारे पास मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए. नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, हम लोगों ने लेट अस सपोज सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन है. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन सी मैट्रिक्स और हम लोगों ने यहाँ पे एडिशन करनी है एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट एडिशन तो सबसे पहले क्या करना है, एक 3 by 3 एरे सिलेक्ट करना है, बिकॉज हमारे पास जो 3 by 3 मैट्रिसेस हैं उनका सम जो है वो 3 by 3 मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आएगा. तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये मैट्रिक्स का जो ये वाइट वाला पोर्शन है यहाँ वी विल राइट डाउन इक्वल टू साइन, क्योंकि जब भी एक्सेल शीट में हम लोगों ने कोई ऑपरेशन अप्लाई करना तो इक्वल टू का साइन जरूर लगाना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट वी विल सिलेक्ट द फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन वी विल राइट डाउन प्लस साइन, बिकॉज अब यहाँ पे देखिए B1 B3 लिखा हुआ है. B1 मीन्स बी का first column or D ka third column, means to say 3 by 3 order of this matrix will be added to the next matrix, that is from G1 to I3. You can say here, see here, B1 D3 means first matrix and G1 I3 is the second matrix. And after that कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. जब आप कंट्रोल शिफ्ट और एंटर लगाते हो तो इट मींस वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर दीज टू मैट्रिसेस. यू कैन से दैट अगर आपके फॉर्मूले में कुछ रह भी जाएगा तो वो जो है एक्सेल में अपने आप वो फॉर्मूला अडेप्ट कर लेगा. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 + 3 = 4, 2 + 4 = 6 and then 4 + 6 = 10. After that 4 + 9 13 and similarly other values are here which are the addition of the two matrices. क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि matrices में जब हम लोग addition करते हैं तो corresponding elements are added to the corresponding elements. Now let us suppose कि अब की बार मैं एक D matrix find out करने जा रहा हूँ which is the subtraction of the two matrices. Again subtraction find out करने से पहले एक 3 by 3 array select करते हैं और इस वाइट पोर्शन में जो ये 3 by 3 array select किया है here we will type equal to sign. Again अब equal to sign टाइप करने के बाद I want to find out the subtraction of the two matrices, so I have to select the two matrices. First matrix A, then type minus sign and after that second matrix is to be selected. और जब second matrix select हो जाती है then control shift and enter sign. You will see here 1 minus 3 answer is -2, 2 minus 4 answer is -2, 4 minus 6 answer is again -2. Similarly here 10 minus 10 answer is 0, 22 minus 4 answer is 18 and so on. Now this was all about addition and subtraction of two matrices. This time we are going to find out the multiplication of a matrix with a scalar quantity. Let us suppose मैं 3 times a matrix find out करना चाहता हूँ. अब 3 times a matrix, if we need to find out 3 times a matrix, again select the whole portion equal to sign, select the whole portion equal to sign and this time start with bracket 3 स्टार, क्योंकि स्टार साइन जो है वो एक्सेल शीट में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है. इक्वल टू का साइन ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करेंगे 3 स्टार और अब हम लोगों ने जिस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, सपोज यहाँ पर ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द मैट्रिक्स ए.
अगेन B1 D3 चेक कर सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला बार जो हमारे पास है वहां पर भी यही फॉर्मूला और यहाँ पर भी, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वी डोंट नीड ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, बट मल्टीप्लिकेशन में वी नीड टू अप्लाई। एंड आफ्टर दैट जब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास यही आंसर आता है। एंड सपोज दिस टाइम आई वांट टू फाइंड आउट 5 टाइम्स द बी मैट्रिक्स। तो अगेन पहले तो हम लोग 3x3 एरे सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद इक्वल टू का साइन ऑपरेशन लगाने के लिए, एंड दिस टाइम ब्रैकेट। अब क्योंकि 5 टाइम्स बी फाइंड आउट करना तो 5 एंड देन स्टार, उसके बाद बी मैट्रिक्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज। जब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आफ्टर दैट कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, यू कैन सी दैट कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं बी मैट्रिक्स के वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद दिस स्केलर क्वांटिटी। एंड नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मान लीजिए मैं ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन ए और बी मैट्रिक्स की फाइंड आउट करना चाहता हूँ। So I can write down here A star B. A और B की मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है। अगेन सिलेक्टिंग 3x3 array इक्वल टू साइन ब्रैकेट स्टार्ट M मल्टीप्लिकेशन, MMULT पूरा यहाँ पे नहीं करना है, M मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स सिलेक्ट करनी है। वी हैव टू सेलेक्ट दिस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे बेटा ब्रैकेट नहीं, सबसे पहले m इक्वल टू का साइन MMULT एंड आफ्टर दैट दिस ब्रैकेट कम्स हेयर, क्योंकि अगर हम लोग पहले ऑपरेशन लगाते हैं तो ब्रैकेट बाद में आएगी। वी हैव टू सिलेक्ट द मैट्रिक्स A। देख लीजिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स सिलेक्ट हो गई। एंड अगर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखना है, यू कैन सी हेयर, यहाँ टास्क यहाँ पर जो है अपनी तरफ से भी ये फॉर्मूला सजेस्ट कर देता है कि एरे 1, और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करनी है तो एरे 1 कॉमा डाल के हम लोगों ने सेकेंड एरे मीन्स टू से अब कॉमा डालेंगे और सेकेंड एरे सिलेक्ट करेंगे। अपनी तरफ से भी एक्सेल में हम लोगों को सजेशन मिल जाती है कि फॉर्मूला क्या लगाना है एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोगों ने ऑपरेशन लगा दिया एंड आफ्टर दैट कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यू कैन सी हियर a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर हमारे पास आ जाता है। सी हियर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 3, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर 18, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40। तो इसका मतलब 3 + 18 + 40 हमारे पास आंसर 60 माना जा सकता है, आता है। एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पूरी की पूरी जो ये रो होती है, दिस इज मल्टीप्लाई विद फुल कॉलम एंड द आंसर इज रिटर्न इन द वेरी फर्स्ट कॉलम। A11 में आंसर लिखा जाता है एडिशन करके। सो दिस वाज अबाउट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से अगर हम लोग बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वी कैन राइट ऑन बी स्टार कैपिटल A एंड आफ्टर दैट सिलेक्टिंग द होल एरे जो 3x3 का एरे है, इक्वल टू का साइन MMULT, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब की बार क्योंकि बी पहले रखना है तो हम लोग बी मैट्रिक्स को पहले लिख लेंगे। अगेन सी हियर फॉर्मूला सजेस्टेड है, इसके बाद सेकंड एरे कॉमा डाल के सिलेक्ट करेंगे एंड दिस वन इज अगेन हियर। सो नाउ दिस टाइम सेकंड मैट्रिक्स इज सिलेक्टेड एंड ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जब भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना एंड विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। ओके, now after that let us suppose we want to find out the inverse of matrix। inverse of matrix, मान लीजिए मैं b मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ। इनवर्स b, this time again selecting 3x3 array, formula equal to m inverse, fully we need to write down m inverse, full लिखना है। मल्टीप्लिकेशन में फुल लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगेन ब्रैकेट। अब लेट अस सपोज बी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पर बी मैट्रिक्स सिलेक्ट कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट क्लोज द ब्रैकेट।
कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड वी हैव फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब सिंपली जब हम लोग कॉपी पे सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करते हैं, लेकिन एक्सेल में क्या होता है, डायरेक्ट आंसर डिवीजन करने के बाद ही हमारे पास आता है। So that was all about the different operations on the matrices. So this is the first activity, and you have to take out the printout of this sheet, and you have to paste in your practical file for this.